Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss about the inflation and its types. Okay, that what is inflation and what are its types? Okay, so let's come to the very first one. But first of all, what is inflation? Inflation refers to the increase in the price. Okay, it simply refers to the increase in the price of any commodity. किसी भी commodity का बच्चे जब price बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको आप inflation कहते हो, right? That is known as inflation simply. Now, what are the different types of inflation? Let's come to the very first. That is your demand pull inflation. Okay, I will not give the examples. Okay, we will just cover the meanings. Okay, the demand pull inflation bache, it occur when the demand for goods and services increase faster than the supply, leading to increase in price. बच्चे आपका क्या हुआ यहाँ पे, डिमांड फॉर द गुड्स ज्यादा इंक्रीज हो गया, मींस देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड मोर एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द सप्लाई. मतलब सप्लाई भी बढ़ी है बट सप्लाई के अकॉर्डिंग आपकी क्या ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई. तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई कम है तो आपका कमोडिटी का प्राइस तो बढ़ेगा ही, right? That is a very first, that is a demand pull inflation. The second we have bache, that is your cost pull inflation. Now what is cost pull inflation? Occur when the cost of production increases. क्या बढ़ गया आपका, cost of production बढ़ गया, cost of production बढ़ गया and the business passes on these costs to consumers, leading to the increase in the price. cost of production बढ़ा जिसके चलते आपका commodity का प्राइस बढ़ गया. ओके, किसका प्राइस बढ़ गया बच्चे, प्रोडक्शन मींस आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो अल्टीमेटली आपके प्राइस में तो फ्लक्चुएशंस आएंगे ही, राइट? सो दैट इज द सेकंड वन. Then coming to the third bache, that is the structural inflation. Okay, now what is the structural inflation? It is occurred due to the imbalance in the supply chain and production process. What is the reason behind this? The price increase होने का बच्चे, now it leads to the imbalance in the supply chain and production cost और द प्रोडक्शन प्रोसेस. जब आपके बच्चे इम्बैलेंस क्रिएट होता है सप्लाई चेन में एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में, मीन्स आपका जो सप्लाई चेन है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसमें इम्बैलेंस आ रहा है, प्लस आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस ढंग से वर्क नहीं कर रही है, वो ढीला ढाला काम कर रही है, तब जो आपका उसके चलते जो आपका प्राइस इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज योर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. मीन्स आपके जो कॉमोडिटी का स्ट्रक्चर है, बनने वाला जो प्रोसेस है वहां पर दिक्कत आई है आपके. ओके, उसके स्ट्रक्चर में दिक्कत आई है. Then we have the next, that is the hyperinflation. What is hyperinflation? Very important term. Hyperinflation. It occurs when there is extremely rapid increase in price, leading to a collapse of the currency and the economy. बट जब आपकी किसी भी चीज के प्राइस रैपिडली बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया है, जहां गोल्ड 28,000 का मिल रहा था आज के टाइम पे 56 का भी नहीं मिल रहा है आपको गोल्ड 10 ग्राम, राइट? जिसको आप कहते हो एक तोले सोना 10 ग्राम. तो व्हाट इज दैट? दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन, राइट? हाइपर इन्फ्लेशन. या फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में एक कॉमोडिटी नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल टमाटो, टमाटो फॉर द पुअर पीपल, दिस इज अ हाइपर इन्फ्लेशन, right? The sudden increase in the price. Okay, yesterday I purchased the tomato of 30 rupees kg and tomorrow it becomes 150, almost a 5 time increase in the price of the tomatoes. So what is that? It is a hyperinflation. Okay, the next we have bache, that is a deflation. Okay, now the what is deflation? Deflation refers to the opposite of inflation. Deflation means the decrease of the price of the commodity. जब आपके किसी कॉमोडिटी का क्या हो जाता है बच्चे, प्राइस कम हो जाता है, द डिक्रीज और द ऑपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन. Okay, moving to the next, that is your stagflation बच्चे. What is stagflation? Occur when there is a combination of high inflation and high unemployment, leading to stagnant economy. Okay, ये क्या है आपका, ये आपका बच्चे कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन किसका है आपका, हाई इन्फ्लेशन मीन्स ज्यादा प्राइस बढ़ जाने का, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया आपका, प्लस आपके देश में आपकी इकोनॉमी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई. तो प्राइस बढ़ा दिया आपने, बेरोजगारी बढ़ गई, तो आपके खरीदेगा कौन इसको, हु विल परचेज दिस, हु गोना बाय दिस, नोबडी विल बाय. तो आपकी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी बच्चे, स्टैग्नेंट हो जाएगी, कि सामान भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो पर खरीदने वाले कस्टमर ही नहीं आपके पास है, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो उस सामान को खरीदेंगे कैसे. सो दैट इज नोन एज योर stagflation. Means बच्चे there is a stagnant economy. Okay, stagnant economy means stag inflation, the stagnant inflation. Then we have the next, that is your walking or the trotting inflation. The walking or the trotting your inflation बच्चे. Now what is that? Just wait. It refers to the slow and gradual increase in price. धीरे धीरे जब आपके प्राइस बढ़ते हैं over the time, धीरे धीरे जब आपके प्राइस बढ़ते हैं, this type of inflation is often associated with a growing economy. क्या होता है बच्चे, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे इंडिया का धीरे धीरे करके आपका प्राइस बढ़ा. इफ यू रिमेंबर, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल. पार्ले जी, पार्ले जी बच्चे पहले 2 रुपए का आता था, जितना बड़ा आज के टाइम पे आपको 5 रुपए का मिल रहा है उतना पहले 2 रुपए का आता था. आज के टाइम पे कितने का हो गया, 5 का हो गया. जो पहले 5 का आता था वो आज के टाइम पे 10 का मिलने लग गया. सो आपका साइज तो नहीं है बट प्राइस डिफरेंट हो गया. कैसे हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है, एक साथ नहीं हुआ.
पहले दूध 15 रुपए का मिलता था, आज के टाइम पे दूध आपको 64 पर केजी मिल रहा है, 64 और 56, ओके, डिपेंड ऑन योर फुल क्रीम ऑल्सो, टोन्ड ऑल्सो, राइट। तो ये है, पहले कहाँ मिलता था, तो धीरे धीरे करके आपका ग्रेजुअली आपने प्राइस बढ़ाया है, सडनली आपने नहीं कर दिया टमाटर की तरह या गोल्ड की तरह, नहीं, इट इज योर सडन, द धीरे धीरे आपका हो रहा है, स्लो एंड ग्रेजुअल हो रहा है, ओके। नाउ दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ग्रोइंग इकोनॉमी। बच्चे उन देशों के साथ होता है जिसकी इकोनॉमी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही होती है, ओके, दैट इज द वन, एंड इट डजंट एनी कॉज एनी कंसर्न वगैरह, ऑब्वियसली बात है बच्चे, धीरे धीरे करके, अब पहले जमाने में लोगों को इनकम 20,000 मिलती थी, तो आज के टाइम पे 60-70,000 मिल रही है, तो डेफिनेटली इंक्रीज आपका पे, आपका जो पे है वो भी तो इंक्रीज हुआ है ना आपका, सो दिस इज द नॉर्मल वन, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट बच्चे, दैट इज द रनिंग और द गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज रनिंग एंड गैलोपिंग? रनिंग और गैलोपिंग इज द जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग। बच्चे वॉकिंग का मतलब क्या होता है? चलना, और रनिंग मीन्स दौड़ना, मीन्स आपका सडन इंक्रीज हो जाए प्राइस में इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, कम समय में ज्यादा प्राइस बढ़ जाए आपका, दैट इज नोन एज योर रनिंग और द गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ओके। समवेयर द ऑपोजिट ऑफ योर वॉकिंग वाला, ओके, वॉकिंग एंड योर ट्रॉटिंग जो था उसका ऑपोजिट, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट बच्चे, दैट इज योर रनवे और द हाइपर इन्फ्लेशन। रनवे और हाइपर मीन्स, ये इसका भी पापा निकला अब, रनवे और हाइपर मीन्स देयर इज एक्सट्रीम रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस, जब आपका प्राइस एक्सट्रीम में बढ़ जाए, जिससे क्या हो जाए बच्चे, व्हेन द डिमांड फॉर द गुड एंड द सर्विसेज एक्सीड द सप्लाई। अब आपका आपका मन है, आप प्राइस कब बढ़ाओगे? आपका मन बच्चे प्राइस पे कब चलेगा? जब आपको पता है कि आपके पास में अंधा डिमांड है, आप समझ रहे हो इस बात को, अंधा डिमांड है आपके पास में, तब आप अपनी मर्जी का प्राइस रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में आपके अलावा उसी को कोई और प्रोवाइड नहीं करा रहा है, so definitely you are the person who can fix the price. So this is that condition, that is a runway or the hyperinflation. Hyper means extreme, so extreme rapid increase in the price of the commodity कब होता है बच्चे? जब डिमांड एक्सट्रीमली बढ़ जाती है सप्लाई से, सप्लाई तो आ रही है बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उस चीज की, ओके। फॉर एग्जाम्पल बच्चे चीनी है, ओके, शुगर है, या फिर फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, सॉल्ट है, सॉल्ट आपका बच्चे क्या है? सॉल्ट हर एक को चाहिए होता है, चलो चीनी तो कोई नहीं खाता, बट एटलीस्ट सॉल्ट तो एवरीवन कंज्यूम सॉल्ट, इट इज अ बेसिक वन, राइट। इसी वजह से महात्मा गांधी ने सॉल्ट लो को ब्रेक किया था आपके, तो बच्चे सॉल्ट सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा तो नहीं कि बिना सॉल्ट के आप खाना बना लोगे, तो अगर सॉल्ट का प्राइस 150 किलोग्राम भी होगा, 150 फॉर पर केजी, तब भी आप खरीदोगे, सो दैट इज नोन एज योर रनवे और हाइपर इन्फ्लेशन, कि उस ओनर के मन में है वो कितना प्राइस बढ़ा रहा है सॉल्ट का, क्योंकि हमें तो लेना ही है, राइट। सो देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड देन इट सप्लाई, सप्लाई उतनी ही है सॉल्ट की, बट डिमांड बहुत बढ़ गई है, ओके, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर हाइपर और द रनवे, ओके। देन वी हैव बच्चे योर माइजरी इंडेक्स। नाउ व्हाट इज माइजरी इंडेक्स? आई थिंक नाम से दुख लग रहा है बहुत ज्यादा, तो व्हाट इज दैट बच्चे? इट इज द मेजर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ पॉपुलेशन, आपकी कंट्री के पूरी इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है, लोगों का वेलबींग कितना हुआ है, उसको कहते हैं आपका माइजर इंडेक्स, ओके। नाउ कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? बाय एडिंग द इन्फ्लेशन रेट। आपने क्या ऐड कर दिया? यू ऐड द इन्फ्लेशन रेट टू द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपने जो प्राइस बढ़ा है उसको अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में ऐड कर दिया। इफ यू रिमेंबर, वेयर डू वी हैव द your this particular one, unemployment? Look at here बच्चे, stagflation, right? Stagflation means when there is a high inflation and the high unemployment. तो आपने क्या किया यहाँ पे? For the misery index, you combine, you just add your inflation rate plus the unemployment, okay? तो जितना ज्यादा बच्चा आपका माइजरी इंडेक्स ज्यादा होगा, माइजरी मीन्स दुखद स्थिति, बेकार परिस्थितियां, जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी इकोनॉमी कैसी होगी? खराब होगी, राइट? वेरी सिंपल, राइट? देन वी हैव द next one bache, that is the inflationary gap. Now what is inflationary gap? Inflationary gap bache, these are not the different types of your inflation, so I will not talk about these, okay? They are also those ones, okay, chaliye, they are also the same. The next what we have students, that is your inflation gap, okay. What is inflation gap? Now inflation gap refers to the difference between the actual level of gross domestic product, the actual GDP, it is the difference between the actual GDP and the potential GDP. Actual means बच्चे अब क्या होता है? For example, आप में द हिम्मत है कि आप 50 बार पुशअप्स कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी कि आप 50 बार पुशअप कर सकते हो, पर आप कर कितना रहे हो? आप केवल 40 पुशअप कर रहे हो, तो 40 पुशअप आर द एक्चुअल वन, ओके, दे आर द एक्चुअल पुशअप जो आप कर रहे हो, और 50 पुशअप आर द पोटेंशियल। आप में पोटेंशियल है, जैसे कि बच्चा आप में पोटेंशियल है कि आप 100 में से 90 नंबर ले आ सकते हो, पर आप केवल पास ही हो रहे हो उसमें से 30 नंबर लाके, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है। सो this is your potential, you can also score 90, this is your potential, but what is actual? This is the reality that you are just scoring 30, okay? So the same way बच्चे, the inflationary gap क्या होता है आपका? Inflationary gap होता है आपका actual GDP,
जो एक्चुअल जीडीपी है उसका क्या करना, डिफरेंस निकालना पोटेंशियल के साथ में, कि पोटेंशियल कितना है हमारी कंट्री का जीडीपी का और एक्चुअल जीडीपी कितना आ रहा है कंट्री के अंदर में। ओके, दिस पर्टिकुलर वन इज नोन एज अ इन्फ्लेशनरी गैप। और बच्चे अगेन ये जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी कंट्री के लिए क्या होगा, खराब होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर डिफ्लेशनरी गैप। व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप बच्चे? नाउ अगेन इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, it is a difference between the actual level of GDP and the potential GDP. Deflation gap occur when the economy is producing below its potential. बच्चे ये कब होता है आपका, जब आपकी कंट्री बिलो कर रही हो अपने पोटेंशियल से। पोटेंशियल 90 आपका, अगेन 90 है पर आप 30 नंबर लेके आ रहे हो, राइट। और ये कब होता है आपका, जब इकोनॉमी आपके अबव पोटेंशियल कर रही हो, मीन्स आपका पोटेंशियल 90 है पर आप 95 लेके आ रहे हो, राइट, कि आपने अपने पोटेंशियल को भी बीट कर दिया है। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, एंड हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर वन। और ये क्या होता है, इससे बच्चे क्या होगा, जब आपका पोटेंशियल कम है, जीडीपी कम है, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, डेफिनेटली देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ एनी गुड। आपकी कंट्री के अंदर में डिमांड कम हो जाएगी गुड की, और यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज आपका पोटेंशियल से भी ज्यादा आप कर रहे हो उस काम को, राइट। The last we have बच्चे, that is a suppressed or the repressed inflation. Okay, now what is a suppressed or the repressed inflation? It refers to the inflation is hidden or capped under control by the government policies. Means आपने इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को सीक्रेटली रखा हुआ है, बताया नहीं हुआ है आप लोग को। इट हैज बीन हिडन एंड कैप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने उस चीज को रोक रखा है आपका, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर वन, दैट द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस, ठीक है। बेसिकली बच्चे जैसे कि आपका नमक है, नमक चाहे तो इंसान 150 रुपीज कर दे, बट गवर्नमेंट ने पैक कर रखा है दैट इट शुड बी ओनली 30। आप 30 के ऊपर में नमक नहीं बेच सकते। अब कोई इंसान ऐसा नहीं कि आप नमक 150 का बेचने चले जाओगे नमक के नाम पे कि मेरा इंपोर्टेड नमक है, नहीं। गवर्नमेंट ने उस पर बच्चे क्या लगा रखा है, आपका कैप लगा रखा है कि इससे ऊपर इसका प्राइस नहीं होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि 5 रुपए के पार्ले जी को 15 रुपए का बेचेगा, नो, देयर हैज बीन अ कैप कि दिस इज द कैप, this is the actual price, you cannot go beyond this particular price. Okay, so this one is known as a suppressed or the repressed inflation. Okay, जिसको government control करती है। Okay, I hope that it's all clear to you all students. Thank you so much for being connected with Northeast PSC. Thank you so much.